Hello everyone, welcome to my channel Learn and Excel with Seema. On this channel, basically I post videos on the topics which are being covered by higher education exams and even all the teaching exams which are being conducted. Now today's video is on micro teaching. I'll be discussing the several aspects of micro teaching such as the definition, the concept, then the phases, the steps, the characteristic of micro teaching, and then the advantages and the limitations of micro teaching. So let's start. But before that, like, share and subscribe my channel. That will give me a motivation to make more and more videos so that me and you both will learn together to have all the understandings and a better knowledge of the topics which are really essential for the competitive exams, teachers' competitive exams. So let's get started. What is micro teaching? Micro teaching is a technique, it is a teacher teaching technique wherein certain skills of the teachers, rather you can say pupil teachers, are developed. So it is acquisition of the desired teaching skills. Now, micro teaching is a sort of specialized training technique that provides opportunities to the pupil teachers for practice and development of some specific teaching skills. माइक्रो टीचिंग को हम मिनिएचराइज्ड टीचिंग भी कहते हैं, इसको स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच भी कहा जाता है. Now, definition of micro teaching. It is a sort of specialized training techniques that provide opportunities to the pupil teachers to organize teaching in micro form, miniature in terms of class, size, time duration and content to be covered. It is also known as सिम्युलेटेड टीचिंग. माइक्रो टीचिंग को हम एक सिम्युलेटेड टीचिंग भी कहते हैं. It is a device of imparting training to the inexperienced or experienced teachers. तो ये जो टेक्निक है ये inexperienced और experienced दोनों ही तरीके के टीचर्स को प्रोवाइड करती है, दी जाती है, जिससे they should learn the art of teaching by practicing specific skills. As I said earlier, it is a scaled down teaching encounter. That means जो normal setting teaching में जो complexities होती है वो सब reduce हो जाती हैं, इसीलिए इसको reduced टीचिंग भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिड्यूस्ड टीचिंग. दिस माइक्रो टीचिंग ओरिजिनेटेड इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. ट्वाइट एलन ने इसको 1963 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था और इंडिया में 1967 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ बाय डी तिवारी ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद. Now, with the help of this technique, the teachers in pre-service education will get training systematically so that they can experiment with the teacher's behavior, and this technique also helps the teacher candidates to experiment and learn
द टीचिंग स्किल्स बाय ब्रेकिंग देम स्मॉलर पार्ट्स। तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो टीचिंग स्किल्स को याद करते हैं, टीचिंग स्किल्स को इम्बाइब करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, और जो आपका पूरा कंटेंट है, जो पूरा माइक्रो लेसन प्लान है, वो छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइडेड होता है। और जो नॉर्मल एक क्लासरूम सेटअप में बच्चे ज़्यादा होते हैं, बहुत केओटिक सिचुएशंस हो जाती, बट माइक्रो टीचिंग एज द नेम इट सेल्फ इम्प्लाइज स्केल डाउन टीचिंग टेक्निक है। तो जो केओस एक नॉर्मल क्लासरूम में मिलता है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आप एक नॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन में इनकाउंटर करते हैं, वो माइक्रो टीचिंग लेसन्स या माइक्रो टीचिंग में आपको नहीं देखने को मिलता। Hence, micro teaching is a teacher training technique that helps the teacher trainees to master the teaching skills. टीचर ट्रेनी जो है वो स्पेशलाइज्ड टीचिंग स्किल्स को यूज़ करता है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है, और थोड़े ही बहुत कम समय, जिस पे अभी हम डिस्कस करेंगे 5 से 10 मिनट के समय में, वो थोड़े ही बच्चों को, 5 से 6 बच्चों को पढ़ाता है। There are certain characteristics of micro teaching. The trainee concentrate on practicing a specific skill. इस माइक्रो टीचिंग में जो ट्रेनी है, टीचर ट्रेनी, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल को प्रैक्टिस करता है। इमीडिएट फीडबैक टीचर ट्रेनी को मिलता है। ये स्केल डाउन टीचिंग टेक्निक है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो उसमें डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि टीचिंग सेशंस जो है मोस्टली पीयर ग्रुप के साथ ऑर्गेनाइज्ड होता है। माइक्रो टीचिंग में, इसको माइक्रो टीचिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि माइक्रो टीचिंग में वी रिड्यूस क्लास साइज रिड्यूस होता है। जहाँ नॉर्मल क्लास में 30 से 40 बच्चे होंगे, माइक्रो टीचिंग में 5 से 10 बच्चे होते हैं। टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है, नॉर्मल क्लास 40 से 45 मिनट की होती है, तो ये इसमें नॉर्मल क्लास 5 से 10 मिनट की होती है। टॉपिक साइज़ जो है वो भी आपका बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत स्मॉल टॉपिक को कवर किया जाता है, कंटेंट भी तो कम होता है, और क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी इसमें लेस होती हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ साइज़ बच्चों का कम है, कंटेंट भी आपका जो है वो स्पेसिफिक है, लिमिटेड है, और ड्यूरेशन भी कम होने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है क्लासरूम सिचुएशन में, वो जो नॉर्मली देखने को मिलती है, वो माइक्रो टीचिंग में नहीं मिलती। माइक्रो टीचिंग के कुछ स्टेप्स हैं। स्किल डिफाइनिंग, इस स्टेप में एक पर्टिकुलर स्किल को जो टीचर ट्रेनी है वो उसको लर्न करता है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है एक्सपर्ट्स पहले से दे चुके होते हैं। फिर टीचर जो है, टीचर ट्रेनी माइक्रो लेसन प्लान को प्रिपेयर करता है, उसको स्मॉल ग्रुप में डिलीवर करता है, टीच करता है बच्चों को। उस पर फिर एक डिस्कशन होता है। डिस्कशन में टीचर जो है, टीचर ट्रेनी को उसके पढ़ाए गए कंटेंट पर फीडबैक दिया जाता है। फिर से वो अपने लेसन प्लान को रीप्लान करता है, फिर रीटीच करता है, एंड देन दी री इवैल्यूएशन, जिसमें फीडबैक जो है वो सुपरवाइजर्स के थ्रू टीचर ट्रेनी को दिया जाता है। माइक्रो टीचिंग साइकिल प्लानिंग से स्टार्ट होती है और जो है फीडबैक पर ख़त्म होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो प्लानिंग में, इस प्लानिंग स्टेप में जो भी स्किल प्रैक्टिस करनी है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे आप एक सूटेबल कॉन्सेप्ट को लेंगे, कैसे माइक्रो लेसन प्लान को बनाएंगे विद दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, वो प्लान आउट करता है टीचर ट्रेनी। फिर जो सेटिंग है, क्लासरूम सेटिंग, उसमें टीचर ट्रेनी टीच करता है बच्चों को। जैसे मैंने बताया 5 से 10 बच्चे, 5 से 10 मिनट का टाइम, और स्पेसिफिक टॉपिक, कंटेंट साइज जिसमें भी कम होता है। और स्टूडेंट पेयर ग्रुप होते हैं 5 और सो इन नंबर, और सुपरवाइजर्स जो रिवैल्यूएशन करेंगे, फीडबैक देंगे, वो 1 या 2 हो सकते हैं।
फिर फीडबैक है, ये वाइटल एस्पेक्ट है माइक्रो टीचिंग साइकिल का। इसमें टीचिंग स्किल जो टीचर ट्रेनी ने इस यूज़ करी है उस पर अप्रेजल दिया जाता है, उसके स्पेसिफिक बिहेवियर पर अप्रेजल दिया जाएगा, and then it can be used for the analysis session or which is given to the teacher trainee with the writing comment on his or her skill performance. नेक्स्ट स्टेप इज़ रिप्लान। अब जो भी फीडबैक दिया गया उसके बेसिस पर जो टीचर ट्रेनी अपने माइक्रो लेसन प्लान को रीप्लान करता है या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड प्लान जिसको उसने डिलीवर किया उसी पे वर्कआउट करता है। और फिर द नेक्स्ट स्टेप इज़ री टीच। यहाँ पर टीचर ट्रेनी री टीच करता है इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द चेंजेस दैट हैज़ बीन गिवन बाय द suggested by the supervisors चेक करते हैं कि क्या उसके स्किल में कोई इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं, एंड देन री फीडबैक। सुपरवाइजर्स फिर से लेसन को असेस करता है, पॉइंटिंग आउट द इम्प्रूवमेंट्स एंड अगेन द ड्रॉबैक्स। अगर कुछ फिर भी त्रुटियाँ रह गई हैं, कुछ फिर भी शॉर्टकमिंग्स रह गई हैं, तो फिर से सुपरवाइज़र जो है उसको फीडबैक देता है। सो दिस इज़ द माइक्रो टीचिंग साइकिल विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग टू टीचिंग विच टेक्स अबाउट 6 minutes, then feedback again 6 minutes, then replan is of 12 minutes, reteaching of 6 minutes, and then re-feedback is of 6 minutes again. So मोटा मोटा 30 to 36 minutes का ये माइक्रो टीचिंग साइकिल होता है। प्लानिंग और टीचिंग, प्लानिंग तो टीचर ट्रेनिंग ने कर ली, 6 मिनट की टीचिंग, फिर फीडबैक। री प्लानिंग जो है वो 12 मिनट का है। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि टीचर को अपने जो भी ड्रॉबैक्स हैं, जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं जिसको कि सुपरवाइज़र ने सजेस्ट किया है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उस पर वर्कआउट करना पड़ता है और माइक्रो लेसन प्लान को फिर से नया बनाना है या फिर एग्जिस्टिंग में ही चेंजेस लाने होते। तो दिस step takes 12 minutes, re-teaching takes 6 minutes, and then re-feedback 6 minutes. So it ranges from 30 to 36 minutes. Now we'll switch to the objectives of micro teaching. पहले तो जो टीचर ट्रेनी है वो नए स्किल्स को असिमुलेट करते हैं। टीचर्स ट्रेनी एक नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स को मास्टर करते हैं और इसके थ्रू उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होता है। Now the principles underlying micro teaching, there are certain principles which I think is important to be discussed at this point. What are the principles of micro teaching? So as you can see from the diagram, the principles of micro teaching is practice, reinforcement, experimentation, evaluation, precise supervision and continuity. Now let's discuss this in detail. वन स्किल एट वन टाइम। माइक्रो टीचिंग जो है वो टारगेट करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ही स्किल को मास्टर किया जा सके। एक स्किल मास्टर्ड होने के बाद अनदर स्किल टारगेट में आती है। दस माइक्रो टीचिंग एम्स फॉर वन स्किल एट अ टाइम। Once the skill has been mastered, a particular skill has been mastered, the teacher trainee aims to master the another skill. स्मॉल स्केल कंटेंट, जो कंटेंट है वो लिमिटेड है जिससे दैट गिव्स मोर फ्रीडम एंड ईज टू द ट्रेनीज। सो लिमिटेड कंटेंट की वजह से टीचर ट्रेनी को उसको डिलीवर करने में, लेसन्स को कंडक्ट करने में आसानी हो जाती है। सो इट्स बिकम ईजियर फॉर देम टू कंडक्ट देयर लेसन्स। Practice makes a man perfect. This is a strong saying and very popular saying that when a person practices a certain thing,
again and again, he or she becomes master, an expert of that area. So mastering skills require practice. जितना ज़्यादा practice करेंगे skills उतना ही ज़्यादा उस पर टीचर ट्रेनिंग की कमांड एक्सपर्टीज डेवलप होती. While focusing on a skill at a time, micro teaching program also gives an opportunity to practice those skills. And when lot of practice is being done by the teacher trainee, उनका confidence level boost up होता है और उनकी teaching skills भी develop होती है. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स जो है की फैक्टर्स हैं किसी भी एरिया में एक्सेल करने के लिए. तो माइक्रो टीचिंग में मेनी एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड टू टेस्ट वेदर द स्किल्स ऑफ द टीचर हैज़ बीन अटेन्ड और नॉट. इंस्टेंटेनियस फीडबैक्स. माइक्रो टीचिंग में टीचर, प्यूपल एंड सुपरवाइजर्स ये तीनों ही एक साथ पैरेलली इन्वॉल्व होते हैं. तो फीडबैक जो है वो सुपरवाइजर्स के थ्रू दिया जाता है. जैसे ही सेशन ख़त्म होता है, टीचर, ट्रेनी और सुपरवाइजर्स दे कम टुगेदर, दे सिट एंड द सुपरवाइजर्स गिव द टीचर ट्रेनी द फीडबैक जैसे ही लेसन प्लान ख़त्म होता है तुरंत दिया जाता है. तो इससे जो भी गलतियां हैं, जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, उसकी रेक्टिफिकेशन जो है वो आसान हो जाती है. It is also you can say a medium of self-evaluation opportunities. Evaluation बहुत important role play करता है. तो supervisors जो हैं various test conduct करते हैं so that there are less chances of making mistakes. Continuous efforts. एक स्किल को मास्टर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए माइक्रो टीचिंग एक ज़रिया है. लेकिन ये जो प्रोसेस है एक्वायरिंग एंड मास्टरिंग स्किल्स, जो एक स्लो और ऑनगोइंग प्रोसेस है. इवन आफ्टर मास्टरिंग अ प्रीवियस स्किल वन शुड कंटिन्यूली स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट. ऐसा नहीं है कि एक बार आपका कमांड आ गया है, एक स्किल को आपने एक्वायर कर लिया तो वो वहीं पर प्रोसेस ख़त्म हो जाता है. नहीं, आपको लगातार कोशिश करनी कि आप उसमें और बेटरमेंट कर सकें. नाउ विल डिस्कस phases of micro teaching. There are 3 phases of micro teaching. First is the knowledge acquisition phase, second is the skill acquisition phase, and third is the transferring phase. In either words, knowledge acquisition phase is also known as active phase. The skill acquisition phase is known as interactive phase, and the transferring phase is known as post active phase. Now in this 3 phases of micro teaching, each phase has its own characteristic. In the knowledge acquisition phase, which is the first phase of micro teaching, the teacher trainee collects the data, the teacher trainee gathers the knowledge about the required skills, and then the required skill is displayed in the next phase. In this phase, the teacher trainee works on the content, works on the plan, how the micro lesson plan will be prepared, and also go through various demonstration videos by which he or she can learn the skills that he or she is going to be to display in the classroom situation. Next is the skill acquisition phase. In this phase, the teacher trainee prepares the micro lesson plan, practice, skill. This is a working phase of the micro teaching program. In this, the teacher prepares, as I said, the lesson plans, practice the skills, and then is set to deliver out the content. So in this
phase there are two important factors of micro teaching: the feedback and the setting. दी लेंथ ऑफ द लेसन, ड्यूरेशन क्या होगा, स्किल कौन सी ऑब्टेन करनी है, और जो हमारे सुपरवाइजर्स जो हमको फीडबैक देंगे वो, और हमारे स्टूडेंट्स क्या हैं उनको कैसे टॉपिक से पे फोकस कराना है और कैसे उनको एक लिमिटेड कंटेंट को उनके बीच में डिस्कस करना है, सो दैट अ पर्टिकुलर स्किल कैन बी डेवलप्ड. And the third phase is the transferring phase. As I said earlier, this is also known as post-active phase. इस ये लास्ट और मेजर फेज है माइक्रो टीचिंग का. Here the trainee comes out in a real situation which is not controlled, and in this the skill that the teacher trainee has acquired is transferred to the real life teaching situation. Now the advantages of micro teaching. Micro teaching के बहुत सारे advantages हैं. It helps in developing the teaching efficiency of both the pre-service and in-service teacher education programs. जो टीचर प्री-सर्विस और इन-सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में दोनों के लिए हेल्पफुल है, उनकी टीचिंग एफिशिएंसी को इन्हांस करता है. Micro teaching can be either in the real classroom situation or in a simulated conditions. As I said, it is also known as simulated teaching. The knowledge and the practice of teaching skills can also be given by use of micro teaching, and then it is a training device for improving teaching practice and prepares effective teachers. माइक्रो टीचिंग फोकस करता है टीचिंग बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि उसकी में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके. जो भी डिज़ायर डायरेक्शन में, उस डिज़ायर डायरेक्शन में टीचिंग स्किल्स को लेकर टीचर्स के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके. Now at last we will be discussing the drawbacks or the limitations of micro teaching. Micro teaching में टीचर्स की क्रिएटिविटी बहुत रिड्यूस हो जाती है, उनको एक सेट प्लान पे वर्कआउट करना होता है, लिमिटेड कंटेंट होते हैं, तो कहीं पर उनकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत कम हो जाती है. न्यू टीचिंग प्रैक्टिसेस की एप्लीकेशन भी लिमिटेड हो जाती है. हमको पता है कि हमको यही टीचिंग स्किल्स को लेकर क्लास में को पढ़ाना है, तो टीचिंग प्रैक्टिसेस जो है वो लिमिटेड हो जाती है. न्यू टीचिंग प्रैक्टिसेस लिमिटेड हो जाती है, उनके एप्लीकेशंस का लिमिटेड हो जाते हैं. इट रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट एंड सूटेबली ट्रेन्ड टीचर्स फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन. एंड देन what will be the criteria of judging the competency and suitability of trained teachers? That parameters, the benchmarks is still need to be prepared. And micro teaching alone is not adequate. उसको किसी भी अदर टीचिंग टेक्निक से सप्लीमेंट और इंटीग्रेट करना होगा. ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है और स्किल्स एग्जॉस्टिव हैं. इट्स नॉट एग्जॉस्टिव, बहुत सारे स्किल्स हैं एंड हर सब्जेक्ट्स पर सारे स्किल्स को अप्लाई करना एक मुश्किल काम है. और बहुत सारे स्किल्स के फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से प्रैक्टिकली ये जो माइक्रो टीचिंग है वो एट टाइम्स इट इज़ नॉट अ गुड एक्सरसाइज. इट्स नॉट कंसिडर्ड it is not considered convention or practical for training. So that's all for today. Thank you. If you like the video, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और उसके से भी ज़्यादा उसको शेयर करना मत भूलिएगा. इफ सो प्लीज़ शेयर द चैनल, share the video with all your friends so that others may also know, and do post your comments also to make me realize the things which I need to do more for you people. Okay, thank you.